Okay, let us discuss pulleys now. Okay, what is a pulley? Pulley is a device which is used to turn the direction of tension force. Okay, you must have seen a well from which we fetch water. In the villages you must have seen a well, कुआं बोलते हैं उसको. So कुएं में when you see there is a pulley, there is a disc, okay, above the well, and the rope goes over it into the well, right? So what is its purpose? If you try to fetch water from the well directly, what will happen? You might fall down someday, okay, because you are directly looking into the well and pulling it. Okay, so what we do is we put a pulley there. If I draw the diagram here, see, suppose there is a well like this and we want to fetch water. What we do is we put a pulley there, है ना? There is a disc with over which a string goes down, and then the person standing here, okay, will fetch water by pulling this string. Correct? You must have seen this scene somewhere. Okay, what happens is he pulls the bucket from the well, है ना? This thing which you see rotating on a axis is called a pulley. Okay, so what is the purpose of pulley generally? It is used to, pull heavier objects, to lift heavier objects. So like this also you must have seen that rope is going around a disc and then an object is pulled up. So if I tell you the statement, it is used to lift heavy objects onto tall heights. To larger heights it is used to pull the objects, okay, or it changes the direction of an applied force through a string, है ना? For example, this is the case in the well. You put the bucket and then you pull the string on the other side. What happens is this pulley helps us to bring this bucket upwards. So how you are applying the force? You are applying the force in the downward direction, and this force is transmitted to the bucket in the upward direction. See? So what does pulley do here? It changes the direction of force which you apply on a rope. In this case, what is happening is we are pulling the rope in the upward direction like this, okay, F in the upward direction, and this bucket is being pulled upwards. So there are many cases in which you will see that pulley is being used in this chapter, okay. So let us take one question and understand how a pulley works. Okay, first of all, let me explain to you. Okay, let us not take the question first. Let us understand how a pulley works. देखो, suppose there is a disc and you want to use it to change the direction of tension force around it. What you will do is you put a string around it like this, okay, and suppose this pulley is hanging from a rigid support. Now if I pull this string from the left string with a force of T and there is a block, okay, this same force is transmitted to the block also. So if I apply T, then T will be acting on the block in the upward direction and mg in the downward direction. If we exceed tension over mg, okay, the tension force increases beyond mg, then the block starts moving upward. This is a way in which pulley is used. So what is an ideal pulley? Okay, pulleys can be of two types, ideal and non-ideal pulleys. Okay, what is an ideal pulley? Let me explain. Ideal pulley, देखो, whenever the pulley is said to be frictionless, okay, frictionless and massless, those pulleys are called ideal pulleys. Okay, what is an ideal pulley? When the pulley's mass is zero or negligibly small and compared with the masses, okay, in the system, then we say that the pulley is massless and also it is frictionless. That is the
rope can move around it without any friction, without any resistance, then that type of pulley is called ideal pulley. Okay, and in case of ideal pulley, the tension on both the sides is same. If T1 and T2 are present, then these two forces are always same. That is T1 is equal to T2. है ना? Around a pulley, if there is a rope and the tensions in the ropes are T1 and T2, then in case of ideal pulley, these two tensions will be same because there is no resistance. Okay, so on both the sides the tension remains same and it is equal. Okay, this is the ideal pulley. And if it is given that the pulley has some mass, then in that case these two tensions may not be same. Okay, chalo, let us take one example here. One end of string which passes through pulley and connected to 10 kg mass at the other end is pulled by 200 Newton force. देखो, there is a pulley which is supported by a string over which there is a string going, है ना? And on one side of the string 10 kg block is hanging and the other end is being pulled by 200 Newton force. So what we have to find is, we have to find out the acceleration of 10 kg mass. हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है कि वो किधर जाएगा. ओके, सो टेंशन हियर इज 200 न्यूटन, सो दिस ब्लॉक will have an upward force. यहाँ पे क्या होगा, देखो, the string is connected here. So if I draw the free body diagram of this block, जिसका मास कितना है बेटा, 10 kg है, you will see that if I apply the field force first, it will be how much? It will be mg. इसका मास 10 है और gravitational acceleration we take as 10, g का वैल्यू 10 हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन. ठीक है, 100 न्यूटन विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑल्सो सिंस देयर इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक, तो उसका टेंशन भी इस पे अप्लाई हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. ये 200 यहां कैसे आया, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर यहां पे टेंशन T है तो यहां पे भी टेंशन T होगा, बिकॉज दिस पुली इज आइडियल. इफ नथिंग इज रिटन देन वी कैन अज्यूम दैट द पुली इज आइडियल. ओके, now if I ask you in which direction will this block move, ये ब्लॉक किधर की तरफ भागेगा, ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, तो ऑब्वियसली सिंस अपवर्ड फोर्स 200 न्यूटन इज मोर देन द डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन, तो इसको किधर जाना चाहिए, दिस ब्लॉक शुड मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा. करेक्ट. तो बच्चे, अगर मैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखूं, दैट इज समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, सो दिस इक्वेशन शुड बी इन वाई डायरेक्शन डायरेक्टली, राइट. तो ऊपर का फोर्स हम पॉजिटिवली लेते हैं, सो 200 माइनस नीचे का फोर्स 100 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बच्चे, इसका मास इफ आई आस्क यू, इट इज 10 एंड सपोज इट्स एक्सेलरेशन इज a इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां से 100 अपॉन 10 एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 10. ओके, जिसका वैल्यू क्या आने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या आया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट टू इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन था एक सिस्टम का जिसमें पुली यूज हो रही है. करेक्ट. चलो, द नेक्स्ट थिंग विच इज एनकाउंटर्ड इन NLM चैप्टर इज इंक्लाइन प्लेन. इसमें क्या होता है बच्चे कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्लोप. ठीक है, जैसे आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, दिस इज अ वेज. ठीक है, इसको जनरली क्या बोल देते हैं हम लोग, वेज बोल देते हैं या इंक्लाइन बोल सकते हैं. ये फिक्स्ड वेज हो गया. अगर फिक्स्ड वेज
या फिर इंक्लाइन प्लेन बोल दो, ये वाला प्लेन जो है ये क्या हो गया इसका, इंक्लाइंड प्लेन। तो इस पे अगर एक ब्लॉक को रखते हैं तो व्हाट विल हैपन, वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रखते हो तो उस पे कुछ फोर्सेस लगते हैं। उन फोर्सेस को हम लोग जल्दी से एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस पर लगेंगे। ओके, लेट अस सपोज दैट दिस इज द इंक्लाइन प्लेन एंड इट इज, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, ओके, सम जनरल एंगल थीटा, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल द फोर्सेस व्हिच विल एक्ट ऑन दिस ब्लॉक। ये एक इंक्लाइन प्लेन है सपोज करो, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका जो एंगल है बेटा वो किस एंगल पर है, थीटा, थीटा पर है, करेक्ट। इसका मास बच्चों हम लोग क्या करते हैं, m ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ आई डायरेक्टली ड्रॉ विदाउट फ्रीइंग इट, इसको फ्री बनाने से पहले ही मैं इस पे अगर फोर्सेस देखूं तो देखो ऑब्वियसली देयर विल बी एन mg फोर्स डायरेक्टली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, है ना। mg फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, ब्लॉक कहीं पे भी रखा हो, कैसा भी रखा हो, mg फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक है, अगर इस पर कांटेक्ट है इस सरफेस का, राइट, तो इस पे एक फोर्स जरूर लग रहा होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स हो जाता है, नॉर्मल फोर्स। तो बेटा इसका डायरेक्शन देखो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ओनली। नॉर्मल फोर्स ऐसे लग गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड mg डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जनरली आप क्या इमेजिन करोगे, इफ आई आस्क यू कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड आई से कि ये ऊपर जाएगा, तो यू विल नॉट एग्री विथ मी, आई एम श्योर, है ना। इसको नीचे लाने के लिए mg फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो बच्चे इसमें क्या करना होता है हमको कि अगर मैं एक्सिस ऐसा ही ले लूं, देखिए इफ आई टेक दिस एक्सिस एज y एक्सिस एंड अलोंग द इंक्लाइन वी टेक x एक्सिस, तो एक फोर्स है जो एक्सिस के अलोंग ही है, y एक्सिस के अलोंग है, नॉर्मल फोर्स। बट यहां पे इफ यू सी दैट mg इज नॉट अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस, x के अलोंग में भी नहीं है, y के अलोंग भी नहीं है, इट इज समवेयर एल्स। तो बेटा व्हाट वी डू इज वी ब्रेक द फोर्स mg इनटू कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, mg के दो कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं यहाँ पे, वन कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगा वो, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है बच्चे। अगर mg इज अ वर्टिकल फोर्स, तो अगर ये थीटा था, ये वाला एंगल अगर बेटा क्या है, दिस एंगल इज थीटा, तो उसके इधर वाला, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो उसके उधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द थीटा इफ आई ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ mg, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा यहां पे mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। ये फोर्स क्या है, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, करेक्ट है। mg cos theta is the force with which this block is pressing the surface of the incline, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट है बेटा, ठीक है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। थीटा के इस साइड वाला जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू इट, वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमेशा, whenever a block is placed on an inclined surface there will be two components of mg, one will be perpendicular to the inclined surface, वो कितना होगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट mg का along the surface आएगा जो surface के along उसको स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा। the component which will attempt और ट्राई टू स्लाइड द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। तो मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ mg, कंपोनेंट ऑफ mg, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन,
परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, वो कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, जहां पर थीटा क्या है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंड पैरेलल टू इंक्लाइन, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है, इंक्लाइन के पैरेलल बट डाउनवर्ड्स, वो कितना फोर्स होता है, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हुआ करेंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि दिस ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ वो स्लाइड हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने यहां पे क्या बात की है, फोर्सेज ऑन अ ब्लॉक व्हेन ब्लॉक और ऑब्जेक्ट इज ऑन अ स्लोप और इंक्लाइन प्लेन। तो स्लोप पे होने पे क्या होगा, दो फोर्सेज होंगे एग्जैक्टली, कौन कौन से, देयर आर टू फोर्सेज, एक फोर्स है mg और एक फोर्स है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा बिल्कुल ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन, और दूसरा कौन सा फोर्स है, mg फोर्स है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो वो भी आ जाएगा। बट mg को डायरेक्टली एनालाइज करना हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होता, ओके। सो व्हाट वी जनरली डू इज वी ब्रेक mg into two components. What are those components? One perpendicular to the incline. How much is that? mg cos theta. And one component is along the incline. That has a component mg sin theta. ठीक है, you should remember this. इंक्लाइन के नीचे की तरफ वाला कितना होगा, mg sin theta, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, mg cos theta. We should remember this always till your tooth come out in old age. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अगर बोल दिया कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन रखा ही हुआ है, यहां पे इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, हाउ विल इट मूव, ठीक है। हमने बात की थी कि वी विल टेक वाई एक्सिस, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक्स एक्सिस कैसे ले लेते हैं, पैरेलल टू द प्लेन, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्स एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन। तो ऑब्वियसली इफ आई आस्क यू कि बेटा ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इमेजिन करो यार कि ये ऊपर जाएगा क्या, इट विल नॉट, वाई, बिकॉज mg cos थीटा इज ब्रिंगिंग इट टूवर्ड्स द इंक्लाइन, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है, ट्राइज टू प्रेस द सरफेस, ठीक है। तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी डाउन द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउन द इंक्लाइन होगा, इंक्लाइन के डायरेक्शन में ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, करेक्ट। तो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पे जो mg cos थीटा कंपोनेंट है टुवर्ड्स द इंक्लाइन, वो एग्जैक्टली नॉर्मल से बैलेंस हो जाता है, करेक्ट। सो डायरेक्टली आई कैन राइट, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे, mg cos थीटा। नॉर्मल का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बाय बैलेंस ऑफ फोर्स नॉर्मल का वैल्यू एग्जैक्टली mg cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देयर इज इक्विलिब्रियम, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ब्लॉक डज नॉट वांट टू ट्रैवल या मूव परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है, उड़ना नहीं चाहता, डज नॉट वांट टू फ्लाई लाइक दिस, बट ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन, है ना, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। दीज टू फोर्सेस वर बैलेंस्ड डायरेक्टली, बट mg sin theta is unbalanced force due to which there will be an acceleration down the inclined plane, ठीक है। So block moves along incline या parallel to incline, ऐसा बोल सकता हूं। उसके लिए एक्सेलरेशन अगर आपको कैलकुलेट करना हो, what we will do, हम क्या करते हैं, फोर्स along x, summation of force along x will be equal to m into ax। x डायरेक्शन आप समझ गए हो, पैरेलल टू द इंक्लाइन हमने यहां पर लिया हुआ है, ओके। तो x डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, mg sin थीटा, करेक्ट है, और इसका मास तो m ही है, और एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन हमें पता नहीं है,
तो mg sin theta is equal to m into ax. तो बच्चे यहाँ पे you will see that m and m can be cancelled and acceleration along the incline it will have clearly value of g sin theta. मतलब अगर एक सिंपल ब्लॉक को स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रख देते हैं then the block moves along the incline, okay, downwards with an acceleration of how much? g sin theta. उसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वो कितना हो जाएगा? g sin थीटा हो जाएगा नीचे की तरफ. करेक्ट है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, तो हमने अगर देखा कि ब्लॉक को अगर एक इंक्लाइन सरफेस पे रख देते हैं देन इट्स एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, ओके, अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ जाता है वो. So that acceleration is called natural acceleration of block down the plane. ठीक है, अगर एक ब्लॉक को स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर आप रख देते हो then its acceleration will be g sin theta and it will be along the inclined surface downwards. तो यहां पे हमें कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल स्लाइड डाउन. बट सपोज इफ वी वांट टू मूव दिस ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर इसको ले जाना है, ओके, वी विल रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स. उसको क्या बोला मैंने कि फोर्स फॉर एक्सेलरेशन ए अप द प्लेन. ठीक है, आपको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हाउ मच फोर्स यू विल रिक्वायर, लेट अस सी हाउ मच इट विल बी. तो ऑब्वियसली कि बेटा देखो दिस ब्लॉक हैज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स. तो फॉर मेकिंग दिस ब्लॉक to move upwards along the inclined plane, what we should do is we should apply an external force. Let us say that that force is capital F. Okay, and since it is said that we want an acceleration, suppose that acceleration up the inclined plane is a. Okay, so already in this diagram mg has been broken into two components, one along the inclined plane which was mg sin theta and one perpendicular to the inclined plane that is mg cos theta. देखो तो इस एक्सिस को अगर मैं perpendicular to the incline, if I say that that axis is y, okay, and along the incline there is x axis. perpendicular to the incline वाले को कौन सा एक्सिस ले लिया? y, और along the incline को हमने कौन सा एक्सिस ले लिया? x ले लिया. We have already talked कि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है we take appropriate axis, है ना, उसके बाद इक्वेशंस लिखते हैं. तो देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स इज देयर. टुवर्ड्स द इंक्लाइन हाउ मच फोर्स इज देयर? mg cos थीटा. इधर की तरफ कितना हो जाएगा? कैपिटल F. और उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन कितना फोर्स है बेटा यहाँ पे? mg sin theta. ठीक है, and the body is supposed to move towards F with an acceleration a. ये बात हो गई. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी along the inclined plane, along the inclined plane the body has to climb. तो इधर का फोर्स ऑब्वियसली F जो है वो mg sin theta से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इफ वी टॉक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, नॉर्मल विल एग्जैक्टली बैलेंस mg cos थीटा. ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर मैं बात करूं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दिस इज द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इट इज y एक्सिस, है ना. तो उस डायरेक्शन में अगर बात करूं तो नॉर्मल एग्जैक्टली बैलेंसेस व्हाट? mg cos थीटा. ये बात तो बहुत सिंपल सी थी, हो गई. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि अलोंग द इंक्लाइन अगर हम फोर्स के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो व्हाट विल हैपन? तो पैरेलल टू इंक्लाइन, ठीक है, वी हैव टू राइट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन, तो फोर्स F should be greater than mg sin theta. Okay, so I will write F minus mg sin theta. Okay,
and it will be equal to mass into acceleration. Its mass is m, okay, and its acceleration up the inclined plane is suppose a. So the force required for this type of motion will be equal to m a plus mg sin theta. ठीक है, m अगर यहां पे कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा a plus g sin theta. So this much force will be required to move the block up the inclined plane with an acceleration a. तो अभी हमने देखा कि ये ब्लॉक अगर आपको ऊपर की ओर ले जाना है, if you want to take this block up the inclined plane, how much force will be required? It will require ma plus mg sin theta force to move the block up the inclined plane. Okay, let us take one similar example related to this situation, है ना? This is a situation in which there are two blocks kept in contact with each other, okay, 2 kg and 3 kg, and an external force of 20 Newton is being applied along the inclined plane in the upward direction. And what the question says is, find out the contact force between 2 kg and 3 kg block placed on the inclined plane as shown in figure. क्या कहता है ये कि देखिए, situation is given. Now we want to find the normal force, the contact force between the 2 kg and 3 kg block. Okay. Now, since this angle is 37 degree, which you are not aware of mostly, so I will write the value of sin 30 and sin 37 and cos 37 first of all. Okay, see, if I want to use this angle 37 degree, then I should write the value first of all. Sin 37 is approximately, okay, 3 by 5, and cos 37 is approximately 4 by 5. We will use these values for calculation purpose. Okay, now we have to find the normal force between these two blocks. Okay, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, we should see the free body diagrams for these blocks. We do not know if these blocks will climb up or slide down the incline. हमें पता नहीं है कि नीचे की तरफ खिसकेंगे या ऊपर की तरफ चढ़ेंगे. So what we do is we just draw the free body diagrams and write the equation of Newton's law of motion second, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे. मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे पता चलता है. देखो, सपोज फॉर 2 kg ब्लॉक आई ड्रॉ द फोर्सेस. इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, देखो 20 न्यूटन. ठीक है, 20 न्यूटन इज अप द इंक्लाइन प्लेन, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा. नीचे की तरफ का फोर्स कौन सा होता है बेटा, mg साइन थीटा. तो इसका mg कितना हो जाएगा, 20. 2 into 10, इसका mg का वैल्यू कितना है, 20 into साइन थीटा. ठीक है, तो 20 into साइन 37, देखो वहां से 3 by 5. ठीक है, 20 divided by 5 will give you 4. 4 3s are 12. So now we have this downward force as 12 and upward force as 20 Newton. ये बात हो गई. Now we know that in this direction it is mg cos theta, right? Perpendicular to the inclined plane, the force component of mg is mg cos theta. So mg is how much, 20. Okay, 20 into cos 37, that is 4 by 5. So 5, if we divide 20 with 5, we will get 4, and 4 into 4 will give you 16. तो इधर की तरफ जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा टुवर्ड्स द इंक्लाइन. बच्चे, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स. इधर की तरफ वाला नॉर्मल फोर्स मैं N1 बोल देता हूं. N1 force is applied by this inclined surface on 2 kg block, है ना, perpendicular to the contact surface. ये पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. Okay, and now if I draw the free body diagram of 3 kg block,
तो 3 kg is also kept like this, है ना. Its mass is 3, so its mg will be how much? It will be 30 Newton. Okay, so in this direction it will be 30 into sine theta, है ना. Along the inclined plane, the component of mg is mg sine theta. Sine 37 here is 3 by 5, so we will multiply 30 with 3 by 5. Okay, 30 divided by 5 will give you 6, and 6 into 3 is 18. So down the inclined plane there is a force 18 Newton in the downward direction. Okay, but we have forgotten one force here. Tell me which force is that? One force which is there because of contact between 2 kg. I have forgotten to put. Okay, if I ask you in which direction the normal force will act on 2 kg, तो 2 kg पर इधर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगेगा 3 kg के कॉन्टैक्ट की वजह से, उसको R बोल देता हूं. दिस सेम फोर्स विल एक्ट ऑन 3 kg, ओके, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. R इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है. तो नीचे की तरफ इस पे mg का साइन थीटा कंपोनेंट आ गया, दैट इज 18 न्यूटन. कॉन्टैक्ट की वजह से 2 kg ब्लॉक इज पुशिंग 3 kg ब्लॉक अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन. वो फोर्स कितना है? R है. तो दिस सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे, ठीक है. दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर. ऑन 3 kg ब्लॉक द एक्शन ऑफ 2 kg किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है. सो vice versa 3 kg block will also apply the same reaction, ठीक है, in the downward direction. पीछे की तरफ पुश कर देगा वो 2 kg को. ये तो हो गए along the inclined forces. इधर वाला कंपोनेंट होता है mg cos theta, ठीक है. तो वो 30 into cos theta, if you see it is written 4 by 5, ठीक है. 6 into 4 will become 24. तो 24 is the force towards the inclined plane, perpendicular to the inclined plane. बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? Contact force by the surface will suppose be N2. ओके, चलो तो डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना है वो देख लेते हैं. यहां पे डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या हो गया देखो. 18 हो गया, 12 हो गया. R तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. 18 and 12 will make 30. नीचे की तरफ के टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 30, और ऊपर का कितना है? 20 है. ये क्या बोल दिया बेटा? मैं समझाता हूं. शॉर्टकट देखना हो कि किधर ब्लॉक जाएंगे. इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट इन विच डायरेक्शन द ब्लॉक्स विल मूव, व्हाट यू डू इज यू टेक बोथ दिस ब्लॉक्स एज अ कॉम्बिनेशन. 5 kg ब्लॉक मान लो, उसका mg कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा. और तो इस इधर की तरफ क्या हो जाएगा? 50 sin 37, ठीक है. तो टोटल फोर्स अगर मैं पूरा का पूरा ब्लॉक ही कॉम्बिनेशन मान लेता 5 kg का, तो डाउन द इंक्लाइन इस पे कितना आने वाला था? 50 into sin 37, यानी 50 into 3 by 5. तो बेटा ये तो 30 न्यूटन होने वाला है. तो डाउनवर्ड फोर्स mg का जो कंपोनेंट है वो तो कितना है? अलोंग द इंक्लाइन 30 है, और अपवर्ड फोर्स कितना है? 20 है. तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये ब्लॉक्स किधर की तरफ आने वाले हैं? ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, राइट? बिकॉज द फोर्स along the incline in the downward direction is 30 and in the upward direction it is 20. तो ये ब्लॉक्स नीचे आने वाले हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में मैं एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ शो कर देता हूं बेटा. ओके, तो ये ब्लॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगे विथ सम एक्सेलरेशन a. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं पहले ही बात कर लेता हूं. N2 विल बी इक्वल टू 24, वो तो रिक्वायर्ड नहीं है वैसे. N1 विल बी इक्वल टू 16. इसकी वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं पूछी है, हमसे किसकी पूछी है? R फोर्स की, जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगेगा. ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड वी विल ट्राई टू राइट द इक्वेशन फॉर ईच ब्लॉक. ठीक है, देखो फॉर 2 kg इफ आई राइट फॉर 2 kg, देखो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं? 12 और R. ठीक है, 12 एंड R इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 20 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो मैं लिखता हूं, देखो
for 2 kg block. Okay, for 2 kg block, 12 in the downward direction plus r in the downward direction minus 20 in the upward direction will give you 2 into a. इसका मास कितना है बेटा? 2 kg है. ठीक है, वापस से चलते हैं 3 kg के लिए फोर्सेस देख लेते हैं जल्दी से. इफ आई सी फॉर 3 kg ब्लॉक 18 in the downward direction and r in the upward direction, तो 18 will be greater than r because it is moving downward. तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए for 3 kg block if I write for 3 kg block, okay, 18 minus r is equal to 3a. इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं हम लोग. वी कैन से that this is equation number 1 and this is equation number 2. If we add equation 1 and 2, okay, what will happen? If you see r and r will be cancelled, okay, 12 and 18 will add and 20 will be there in the minus. ठीक है, तो 12 plus 18 minus 20 is equal to 5a. ठीक है, ये वाले एडिशन में है, ये वाला एडिशन में है, राइट? तो दे विल ऐड टू गिव यू 30. दिस इज इन सब्सट्रैक्शन एंड r and r वर कैंसल्ड. तो ये आ गई इक्वेशन. 30 minus 20 10 is equal to 5a. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा होता तो वी कुड हैव आंसर्ड डायरेक्टली कि एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम भी किया था कि ये डाउनवर्ड जाएंगे और सही भी था. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गई है. सपोज किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होता कि ये नीचे जाएगा और आप अज्यूम कर लेते ए ऊपर, तो आपको ए की वैल्यू यहां पे नेगेटिव मिल जाती. आई विल जस्ट रिपीट, अगर सपोज करो कि आपने एक्सेलरेशन ऊपर माना होता, राइट, बट सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ निकालते और वो नेगेटिव आ जाती. इस बात का मतलब ये समझना है कि आपने जो अज्यूम्ड डायरेक्शन माना था वो गलत था. एक्चुअली द एक्सेलरेशन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, if we had assumed that a will be upward, our value of acceleration would have come out to be minus 2 meter per second square. ठीक है, तो just that tells us that acceleration will be in opposite direction. That's all. Your magnitude will be right. What we have to do is we have to find the value of r, the reaction force between 2 kg block and 3 kg block. So what I am going to do is I will use equation number 2. देखो, 18 minus 3a is equal to r. This equation, if I send 3a on that side and r comes to the right hand side, then you will be able to find the value of r. Okay, तो r का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 18 minus 3 into a. a का वैल्यू हमें मिल चुका है. इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इफ आई पुट द वैल्यू हियर, 18 minus 6, that will make 12 Newton. Okay, so block 2 kg and 3 kg will push each other with a reaction force, a contact force of 12 Newton. एक दूसरे के बीच में इनका फोर्स कितना हो जाएगा? That will be 12 Newton. Okay, I hope you have understood this question.